Hello, friends. Today's topic is human health and disease. So, talking about immunity, firstly, here it includes innate immunity, which is present in us by birth, which is genetic, and acquired immunity, which is we acquire as we grow during our lifetime, during our lifespan. Talking about innate immunity, it has different types. First is physical barrier. Physical barrier includes skin, respiratory tract, mucus, lining of the digestive tract, and physiological barrier includes saliva, tear, HCl. Saliva has lysozyme and also thiocyanate ion, which is present in through IgA, and tear, which contains salts and lysozyme, also HCl, which is present in our stomach. We all know that. Also, next we have cellular barrier. Cellular barrier includes phagocytic cells. ऐसे सेल्स होती हैं जो कि खुद ही ईट करने के केपेबल होती हैं. द सेल्स विच आर हार्मफुल टू आवर बॉडी मेजरली, एंड अपने अपने अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं उनके पास खुद के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कफर सेल्स प्रेजेंट इन लिवर, Hessel cells present in our thymus, and dust cells in lungs. Thymus is also primary lymphoid organ present in our body. So do remember these cells. So in cellular barrier, it also includes neutrophils and monocytes, which is present in blood and lymph. So these three and these two, you have to include all these. Histocytes also. Histocytes has adipose tissue, areolar tissue, etc. We all know that these are fat related tissues present in our body, obviously in very less amount, but a kid, if an infant has most part of it when born for a year. So moving on, we have cytokine barrier, also called as lymphokine barrier, because we have mostly lymphoid related cells included in this barrier. Here it includes interferons, interleukins, kinins, TNF, which is tumor necrotic factor, and these TNF are released by natural killer cells. Interferons, if we now particularly would talk about these cells here, interferons and interleukins, we're also going to talk about them. So talking about interferons are the glycoprotein antiviral particles. These are antiviral first of all, produced by virus infected cells. तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में इंटरफेरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और अगर बायोमोलिक्यूल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन. यहाँ पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, बन सकता है. ऑल्सो इट इज़ एंटीवायरल. सो वाई इज़ इट एंटीवायरल? बिकॉज ये जब भी वायरस के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये खुद और अपने आसपास के जो सेल्स हैं ये कुछ केमिकल्स रिलीज़ करके इट प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ एंड द अदर नियर बाय सेल्स, ताकि वो जो वायरस है वो उनको इन्फेक्ट ना कर सके. सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं वो खुद की प्रोटेक्शन के लिए दे रिलीज इट. इंटरफेरॉन्स जो हैं गेट डिफ्यूज टू द नेबर सेल्स टू मेक देम वायरस रेजिस्टेंट. नेबर सेल्स में ये डिफ्यूज़ होना शुरू कर देते हैं ताकि वो जो सेल्स एज आई टोल्ड वो भी वायरस रेजिस्टेंट हो जाएं. इंटरफेरॉन्स रिटार्ड वायरल ग्रोथ बाय रिटार्डिंग इट्स जीनोमिक रेप्लिकेशन, and some interferons give anti-cancerous properties also. Anti-cancerous alpha type mainly, the anti-cancerous cells will will be seeing alpha type cells, जो कि हम बाद में अभी पढ़ेंगे. आप लोग को जब हम एग्जाम्पल्स इसके अंदर पढ़ेंगे टाइप्स के, तब बाकी आप जस्ट ऐसे याद करने के लिए भी रख भी सकते हैं कि जो अल्फ़ा टाइप होता है इट मेनली इंक्लूड्स एंटी कैंसरस सेल्स. इन इंटरल्यूकिन्स, इट हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इम्यून सेल्स. एक इम्यून सेल्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जो हेल्पफुल है वो इंटरल्यूकिन्स हैं. एंड ऑल्सो इट एक्ट्स एज पायरोजन. पायरोजन्स आर
समथिंग विच इंक्रीजेज आवर बॉडी टेम्परेचर. हम ऐसे नॉर्मली भी से कि हमें फीवर है, ठीक है, एंटीपायरोजन ले लो. सो एंटीपायरोजन इज़ समथिंग विच डिक्रीजेज योर fever, decreases your body temperature. So it's something which increases body temperature, because we all know कि अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो जो भी अगर माइक्रोबियल एक्टिविटी है, इट हैज़ कैपेबिलिटी कि वो उसको किल कर पाए, उसको डिक्रीज़ कर पाए. सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज पायरोजन. Coming on to the acquired immunity, now the second part of the immunity which we talked about initially. So acquired immunity is developed during lifetime while growing up. It has now defense systems. It includes, which are 3 defense systems: the first line defense system, the second line, and the third line. First line is non-specific. You have to remember this very clearly. I am saying it here that non-specific. Second line is also non-specific, but the third one is specific, and also it's a little bit advanced. So in the first line defense system, it includes the physical barrier and physiological barrier, as we studied in the innate immunity. The first line of defense includes. So the second line of defense includes the cellular barrier, and the third line of the defense includes antibody and antigen reaction. ऑल्सो आप लोग इसको इससे रिलेट ना करें तो ज़रूरी नहीं है एक्वायर्ड से करना, बट देन एज डिफरेंटली ऑल्सो एक अलग से आप लोग इसे याद रख सकते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं डिफेंस सिस्टम के, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, और एंड दीज एज वी टॉक अबाउट. सो नाउ यहाँ पे अब हमें देखना है कि कौन सा सेल्स पहले क्या रिलीज़ होता है जब कोई भी एक एंटीजन या कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर रहा है अगर. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंटीजन और पैथोजन ने एंटर किया है, एंटर्स द बॉडी. सबसे पहले यहाँ पर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो इसको लेकर आता है एंटीजन को और कैप्चर कर लेता है. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से ही आपको ये चीज़ याद रखनी है. और उसके बाद यहाँ पर जो है कैप्चर करेगा, एंटीजन आएगा और एपीसी के पास, एपीसी जो है एंटीजन को लेकर आएगा. सबसे पहले चोर घुस रहा है हमारी बॉडी के अंदर, एक चोर ने एंटर किया. सो देन एपीसी कम्स, एपीसी अराइव्स एंड उसको कैप्चर करेगा और उसको लेकर के जाएगा. एक पूरा प्रोसेस है. कहाँ लेकर जाएगा? सबसे पहले हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के पास वो लेकर जाएगा. इसके 2 वेज हो सकते हैं. दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2 एंड दिस इज़ नंबर 3. सो देयर कैन बी 3 वेज. सबसे पहला क्या किया उसने कि वो टी लिम्फोसाइट्स के पास लेकर गया और टी लिम्फोसाइट्स ने इंटरल्यूकिन्स और काइनिन्स रिलीज़ करे और हमारा बी लिम्फोसाइट जो है उसके पास ले गया, जहाँ पे कि क्लोन डिवीज़न हो रहा है उसका, बी लिम्फोसाइट्स का ही डिवीज़न. एंड देन डीएनए का रीअरेंजमेंट हुआ, प्लाज्मा सेल्स की फॉर्मेशन हुई हमारे, एंटीबॉडी मिनिमम एट द रेट ऑफ 2000 पर सेकेंड्स इज़ फॉर्म्ड. बहुत जल्दी और बहुत सारी रेट पर हमारी जो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन है, वी टॉकिंग अबाउट मिनिमम हियर, मिनिमम रेट है 2000 एंटीबॉडीज़ पर सेकेंड is forming in our body, starts forming in our body, and it reaches to the site of antigen or pathogen to kill it. Now talking about the second part here. Talking about the second part, we have it goes to from T lymphocytes. Either it can go to B lymphocyte or it can go via interleukins and kinins to killer T lymphocytes. By making clones of it, and it reaches to the antigen site pathogen to kill it. Now talking about the third one, as soon as the APC captures the antigen here, it takes it to the directly, without taking the help of T lymphocyte, takes directly to the B lymphocyte, and the process similar to the first one then continues, skipping this wala step. So alright, let's move ahead. So yes, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे को बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए. इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो मैंने अभी ऊपर जो भी आप लोगों को ये पढ़ाया है, फ्लो चार्ट दिखाया है, ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप डायरेक्टली इसको रेफ़र कर लें. बट देन इसके जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे बहुत क्लियरली मैंने मेंशन करे हुए हैं
कि सबसे पहले जो एंटीजन या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, देखिए वही चीज़ें यहाँ पर है बताई हुई है हमें, कैप्चर करता है एपीसी उसको, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद जो एपी है वो रिप्रेजेंट करता है एंटीजन को, मेनली द हेल्पर टी लिम्फोसाइट और मे बी डायरेक्टली विच वी रेड इन द रिमेंबर द थर्ड स्टेप that directly to the B lymphocyte or killer T lymphocytes. Then some of the APC represent antigen without processing also, and these cells represent antigen by forming आइकोसोमर्स. ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना है कि कई बार क्या होता है कि कुछ जो एपीसी होते हैं वो एंटीजन को सीधा ले जाते हैं, उनके सेल्स के रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिप्रेजेंट्स एंटीजन बाय फॉर्मिंग आइकोसोमर्स. तो आइकोसोम्स की फॉर्मेशन करके डायरेक्टली दे कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द एंटीजन. इसकी एग्जांपल्स क्या होंगे, फॉर्मेशन कौन कौन कर पाएगा आइकोसोम्स का, तो इसके एग्जांपल्स में आएंगे हमारे माइक्रोफाजेस, फैगोसाइटिक सेल्स, बीटा लिम्फोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स. डेंड्राइटिक सेल्स ऑल्सो इफ़ वी लुक एट इट, तो डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एंटीजन को विदाउट प्रोसेसिंग. ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि हमारे MHC2 के अंदर भी विल सी प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइटिक सेल्स, जो कि एंटीजन को बिना किसी प्रोसेसिंग के डायरेक्टली दे कैन प्रेजेंट फैगोसाइटिक सेल्स. सो हियर एज द एंटीजन कम्स MHC इज़ प्रेजेंट हियर. ये एक मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाया हुआ है कि वो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फर्मेशनल चेंज होगा, एंड देन द एंटीजन अटैचेस हियर वाया रिसेप्टर एंड इट एंटर्स द सेल, एंड ऑल्सो वो जो उसका स्टॉक होगा वो वहीं रह जाएगा, एंड देन द मॉलिक्यूल इज़ रिलीज्ड एंड मॉलिक्यूल इज़ एंटीजन एंड ऑल्सो इट्स रिलीज्ड एंड देन presented the helper T lymphocytes. And talking about the dendritic cells, how do they work with icosomes basically, ये हमने एग्जाम्पल्स किसके किए, यहाँ पे हमने आइकोसोम्स के बहुत मेजर एग्जाम्पल हमारा डेंड्राइटिक सेल होता है यहाँ पे. तो डेंड्राइटिक सेल के ऊपर देखिए हम यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, और ऊपर से कोई भी एंटीजन अगर आ रहा है तो वो उसको सीधा कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद वो अपने आप को अपनी उस बॉडी से रिमूव कर लेते हैं आइकोसोम्स, वो डायरेक्टली वहाँ पे उसके बाद इसके थ्रू जो है एपी रिप्रेजेंट कर पाते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट को डायरेक्टली. ओके, सो वी आर लॉस्ट अ लिटिल. yes, talking about MHC. MHC is major histocompatibility complex or factors present. The full form of it, we call it major histocompatibility complex या factors, कुछ भी बोल सकते हैं. सो ये सबसे पहले इसमें क्या है कि जो जीन है MHC का वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट होता है. कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर 6 पे हमारे प्रेजेंट होता है. अरेंजमेंट ऑफ अलील्स ऑफ MHC कॉल्ड हैप्लोटाइप. अगर अलील्स का MHC पे हम अरेंजमेंट देख रहे हैं तो उसको हम हैप्लोटाइप बोलेंगे, स्पेशली ऑन MHC. सो मैचिंग ऑफ MHC ड्यूरिंग एन ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन इज कॉल्ड एज टिश्यू टाइपिंग. जब भी हमारा मेजर MHC इज अ मेजर पार्ट व्हेन वी आर डूइंग द ट्रांसप्लांटेशन वर्क. सो व्हाइल वी आर डूइंग दिस विद एन ऑर्गन और टिश्यू, इट्स कॉल्ड एज टिश्यू टाइपिंग. द टाइप्स ऑफ MHC के यहाँ पे हम मेनली 2 टाइप्स पढ़ रहे हैं, विच इज़ 1 and 2. MHC1 and MHC2. MHC1 if we talk about, they are present at all nucleated cells. जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं वहाँ पर ही प्रेजेंट होते हैं. इसका मतलब कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, RBC पे नहीं होंगे. We know RBC when mature RBC doesn't have nucleus, so not present there. Also sperm cells में भी ये present नहीं होते हैं. So it works in the coordination with the killer T lymphocytes. It works in the coordination with the killer T lymphocytes के साथ ये work करेगा MHC1. And then MHC2, these are present at special effector cells और APC और special effector cells के साथ ही present होता है और work करता है in the coordination with the helper T lymphocytes. It's very important point, you guys must remember it. Now talking about the complement system of proteins.
So the complement system we have in our body is made up of 30 proteins, and it works in a cascade manner. Cascade manner is एक के बाद एक, like it doesn't stop it. The first one is connected to the second one and the second one connects to the third one. So cascade manner, like ये वर्क हो रहा है, इसके बाद ये वर्क होगा और उसके बाद ये वर्क होगा. इन अ cascade manner it goes on and kills pathogen by, it can kill pathogen by there are two ways in which it can kill pathogen. The complement proteins, complement protein is also part of innate immunity. Okay, so it kills pathogen by either to creating hole in the wall of fluid diffuses and causing the bursting of pathogen. So pathogen के अंदर वो क्या create कर देगा, जो प्रोटीन है वो एक होल क्रिएट कर देगा उसकी वॉल के अंदर. अगर वॉल के अंदर होल हो गया, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम अगर आप लोग को क्लियरली दिख रहा हो तो मैंने बनाया हुआ है, ये एक सेल्स का पूरा है बना हुआ है सेल्स. यहाँ पर होल हो गया अगर, तो यहाँ पे जो है फ्लूइड फिल हो जाएगा, और अगर फ्लूइड यहाँ पर फिल हो गया तो ये बर्स्ट सेल कर सकता है. यहाँ पे वाटर ज़्यादा फिल हो गया, और इट कैन हैपन बाय मेकिंग कॉट अराउंड द पैथोजन टू मेक इट प्रोन टू द फैगोसाइटिस. अभी क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसके अराउंड ये कॉट की फॉर्मेशन कर लेगा. अब अगर कोट की फॉर्मेशन उसने कुछ इस तरह के पार्टिकल्स होते थे कि विच विल बी प्रोन टू साइटोसिस वेरी इजीली. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स, ऑल्सो AMI एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. सो तो बी लिम्फोसाइट का जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह से होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. कई बार क्वेश्चंस में इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इट्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. सो हियर व्हेन सम एंटीजन और पैथोजन एंटर्स द बॉडी इट गेट्स कैप्चर्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द APC. जब कोई एंटीजन या पैथोजन एंटर कर जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो वो कैप्चर और प्रोसेस क्या होता है बाय विद द हेल्प ऑफ APC. And after processing, antigen is represented mainly to the helper T lymphocytes, mainly and majorly helper T lymphocytes के पास ही उसको लेकर जाया जाता है. There are other ways which we have just now read, so it may be directly can also be possible कि directly उसे B lymphocyte के पास लेकर जाया जाए. Now helper T lymphocyte further convey the message. अगर हम यहाँ पर बात करें थे helper T lymphocyte की, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के पास से ये बी लिम्फोसाइट को मैसेज आता है इंटरल्यूकिन्स के थ्रू. इंटरल्यूकिन्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, मैसेज हमारा वहाँ से जा रहा है उसके थ्रू, हेल्प इंटरल्यूकिन्स की हेल्प से. देन आफ्टर गेटिंग मैसेज बी लिम्फोसाइट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस क्लोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ काइनेंस, दैट इज डिवीजन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स आफ्टर गेटिंग स्टिमुलेटेड बाय एंटीजन विच इज कॉल्ड एज क्लोनल सिलेक्शन. B lymphocytes shows a specific type of DNA rearrangement and forms the descendant cells. B lymphocytes के जो descendant cells होते हैं एक पर्टिकुलर DNA rearrangement की फॉर्मेशन में वो फॉर्म्ड होते हैं, उनको हम प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं. अब जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो B lymphocytes का ही पार्ट हैं, but they are destined to form a specific type of antibody against the particular type of antigen. सो दीज मतलब जो भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन जो भी हमारा मेजरली होने वाला है वो प्लाज्मा सेल्स के थ्रू ही होने वाला है. कोई भी एंटीजन आ जाएगा तो एंटीबॉडी किसके हेल्प से बनेगी. नाउ बी लिम्फोसाइट ऑल्सो हैज़ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, बेसिकली मेमोरी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स, बट द प्लाज्मा सेल्स आर मेजरली हेल्पफुल फॉर द एंटीबॉडी फॉर्मेशन. प्लाज्मा सेल्स आर रिच इन RER. टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मा सेल्स में ऐसा क्या अलग है. सो प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो RER दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिच होते हैं, एंड बिकॉज दे हैव टू फॉर्म द सेक्रेटरी प्रोटीन्स दैट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स की फॉर्मेशन करते हैं विच आई सेड की एंटीबॉडी बनाते हैं. एंड इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन B आप लोगों को पता है कि हम पढ़ते हैं, तो ये इम्यूनोग्लोबिन बनाने में हेल्प करते हैं हमारे. तो ये RER में ऑब्वियसली इनको रिच होना ही है क्योंकि सेक्रेटरी प्रोटीन्स जो है हमारे बनाते हैं. सो इससे हम एक और वी कैन मेक वन क्वेश्चन आउट ऑफ इट कि इम्यूनोग्लोबिन्स भी एक टाइप ऑफ सेक्रेटरी फॉर्म्स होते हैं. ओके, सो नाउ एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन्स दे रीच टू द साइट ऑफ एंटीजन और पैथोजन टू किल इट. इसीलिए हम इसको एंटीबॉडी
यहाँ पे हमने ऊपर ही देखा है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है। अब यहाँ पे इसका रीज़न भी हमें बता दिया है, क्यों? क्योंकि जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन या पैथोजन तक पहुँचते हैं, तो इसीलिए उसकी साइट तक पहुँचते हैं ताकि उसको किल कर पाएँ, तो इसलिए हम उसको AMI भी बोलते हैं। हियर एंटीबॉडीज़ मूव्स वाया बॉडी फ्लूइड्स। अब एंटीबॉडीज़ मूव कैसे करती हैं? बॉडी फ्लूइड्स की हेल्प से, इसीलिए दैट्स वाई वी कॉल इट ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी ऑल्सो। हियर वी are done with B lymphocytes. Now talking about T lymphocyte response. Now B lymphocytes, as we read, AMI था, antigen mediated response, sorry, antibody mediated response. Now talking about B lymphocytes, these are cell mediated immunity. यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी अगर एंटीजन या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले कैप्चर और प्रोसेस वी ऑल नो कि APC से होता है. आफ्टर प्रोसेसिंग APC represents antigen mainly to the helper T lymphocytes, and it also can directly take to the killer T lymphocytes. So now helper T lymphocyte signals to the killer T lymphocyte by interleukins की interleukins की हेल्प से helper T lymphocyte सिग्नल प्रोवाइड कर देता है killer T lymphocytes को. Now T lymphocytes डिवाइड करेगा और प्रोड्यूस करेगा क्लोन्स आफ्टर गेटिंग मैसेज. क्लोन्स क्यों प्रोड्यूस करेगा? ऑब्वियसली ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, तो इट नीड्स टू गेट क्लोनल सिलेक्शन होने वाला है, यहाँ पर क्लोन्स बनेंगे. नाउ किलर टी लिम्फोसाइट्स रीचेस टू द साइट ऑफ द एंटीजन और पैथोजन टू किल इट, एंड सिंस कंप्लीट सेल रीचेस टू द साइट ऑफ एंटीजन पैथोजन, पूरा का पूरा जो सेल है वो पूरा उठ करके हमारे एंटीजन या पैथोजन के पास जाएगा. तो देयरफॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वी हैव कॉल्ड इट. इस तरह से यू कैन रिमेंबर इट ऑल्सो. किलर टी लिम्फोसाइट्स किल करता है पैथोजन को बाय रिलीजिंग साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस. ना किलर जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो किस तरह से पैथोजन को किल करता है? साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करके, विच इज़ ऑल्सो नोन एज परफोरिन. टी लिम्फोसाइट्स कैन हैव डिफरेंट types also. The first one is helper T lymphocyte. It contains CD4 receptors. That's why also called as CD4 cells. CD की अगर आप लोग यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि इसका जो फुल फॉर्म है क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होगा. सो CD4 सेल्स भी बोल सकते हैं, हम आपको लिम्फोसाइट से बोलेंगे. यहाँ पर जो है दीज सेल्स लिम्फोसाइट्स हैव CD4 रिसेप्टर्स एंड इट वर्क्स इन द एसोसिएशन ऑफ MHC2. MHC2 के साथ जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है वो वर्क करता है. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि MHC2 जो है वो TH के साथ वर्क करता है, एंड MHC2 ऑल्सो हैज़ CD4 रिसेप्टर. नाउ टॉकिंग अबाउट द किलर T lymphocyte, we have CD8 lymphocyte and it includes MHC1. So MHC1 जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा, ऊपर MHC2 के लिए we have read 4, that is CD4 हमारे पास प्रेजेंट होता है. ऐसे ही MHC1 के लिए we have CD8 and they work in the association of MHC1 obviously. Now they are involved in the tissue rejection. MHC we have read कि tissue rejection reaction में भी involved होएगा. Then we have suppressor T lymphocyte. suppressor T lymphocyte के अंदर क्या होता है कि after killing of the pathogen और eradication of pathogen, जब वो पैथोजन चला जाता है बॉडी से, तो जो suppressor T lymphocytes है वो सप्रेस करते हैं B और T lymphocytes की एक्टिविटी को. अब क्या होता है कि कोई पैथोजन आया है तो बहुत ज़्यादा एकदम से हमारी बॉडी जो है वो लिम्फोसाइट्स बनाने के लिए एक्टिवेट हो जाती है, बट देन इट नीड्स टू बी सप्रेस्ड ऑल्सो, अदरवाइज़ उसके और भी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे भी हो सकते हैं कि कहीं हमारी ज़्यादा बनने लग जाए या कोई सेल्स कैंसरस सेल्स में फॉर्म हो जाए. तो टू अवॉइड ऑल दैट सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि कब आते हैं? जब वो पैथोजन हमारी बॉडी से पूरी तरह या तो इरेडिकेट हो जाता है या वो किल हो जाता है, मर जाता है, तब वो आते हैं ताकि सप्रेस कर पाए बी और टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी, क्योंकि ऐसे तो उसको पता ही नहीं है, वो बनाता जाएगा अपना प्रोटीन. सो देन इट कम या फिर अपना वर्क करता जाएगा एज पर वी से. सो सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स कम एंड दी सेल्स डू सो टू प्रिवेंटेड चांसेस ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. अब यहाँ पर मेजरली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं. कैंसर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी विच इंक्लूड्स इंटरल्यूकिन्स एंड ऑल, बट देन ह्योर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के चांसेस होते हैं.
नाउ एपीसी की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो है कैप्चर करती है, प्रोसेस करती है, एंड देन इट्स अगेन, ये चार्ट आपको बनाया हुआ है ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ। देन कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन, यहाँ पर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इम्यूनोग्लोबिन की, तो ये गामा ग्लोबुलिन स्ट्रक्चर होता है और एक वाई शेप्ड एंटीबॉडी हमारा स्ट्रक्चर होता है, एंड मेनली गामा ग्लोबुलिन स्ट्रक्चर हमारा होता है। सो ईच आईजी इज़ मेड अप ऑफ 2 हैवी चेन्स, हर एक जो एंटीबॉडी होता है 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स का बना होता है, H2L2 जिसको हम बोलते हैं, H2 एंड L2। सो हियर फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द IG इज़ हिंज पार्ट, हिंज पार्ट जैसे हमारे जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सो इट्स देयरफॉर जो हमारा हैंड है, हमारे हैंड के अंदर जॉइंट है तभी ये मूवेबल है। लाइकवाइज IG एंटीबॉडी हैज़ ऑल्सो अ हिंज पार्ट, so that is why it's flexible and it's rich in the proline। प्रोलीन एक अमीनो एसिड है, यू कैन रिमेंबर इट अलग से कि प्रोलीन जो है वो हमारा एंटीबॉडी के हिंज पार्ट की फॉर्मेशन, जो हिंज पार्ट जो है बेसिकली वो प्रोलीन रिच होता है। एंटीजन, एंटीजन और बाइंडिंग साइट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज कॉल्ड एज पैराटॉप, जहाँ पे हमारे एंटीबॉडी के ऊपर आकर बेसिकली जहाँ भी वो बाइंड होगा एंटीजन, उसको हम बोलेंगे पैराटॉप, उसको वील कॉल इट पैराटॉप। नाउ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ IG आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। नाउ ये जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स होती हैं ये किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस की फॉर्मेशन होती है। ये देखो यहाँ पे वी हैव फॉर्म, ये जो बॉन्ड्स हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई हुई है यहाँ पे। एंड ईच IgG इज़ डिस्टिंक्ट इन कांस्टेंट एंड वेरिएबल जोन, जो कांस्टेंट और वेरिएबल जोन है हमारा एंटीबॉडी के अंदर, उसकी वजह से जो डिस्टिंक्ट एक हम कर सकते हैं एक IG दूसरी IG से कैसे अलग है, वो हम कांस्टेंट और वेरिएबल जोन की हेल्प से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। और हर एक IG के पास एक अलग अपना कांस्टेंट, वेरिएबल और हाइपो वेरिएबल रीजन ज़रूर होता है। तो प्रोटियोलिटिक ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम प्रोटियोलिटिक यानी प्रोटियोलिटिक इज़ समथिंग विच ब्रेक्स प्रोटीन, एंड वी नो कि जो हमारा एंटीबॉडी है इट्स ऑल्सो ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन। सो प्रोटीन मेजरली प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज में प्रोटीन मेजरली प्रेजेंट है। सो वी व्हेन गिवन प्रोटियोलिटिक ट्रीटमेंट जो कि प्रोटीन को तोड़ देता है, तो मतलब अगर IgG को तोड़ा जाएगा तो 2 FAB एंड 1 FC सेगमेंट्स में ये टूटेगा। FAB इज़ एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट एंड FC इज़ क्रिस्टलाइज, C वैसे क्रिस्टल के लिए होता है यहाँ पर, तो जो फ्रेगमेंट है बाय विच एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडी बाइंड करता है सरफेस पे इफेक्टर सेल्स के। तो यहाँ पर ये हमने स्ट्रक्चर भी इसका बनाया हुआ है एंटीबॉडी का, यहाँ पे अपने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स दिखाए हुए हैं, और यहाँ पे एंटीबॉडी का जो ये पार्ट है इसको हम पैराटॉप बोलते हैं, जहाँ पे हमारे एंटीजन आके जो है बाइंड होंगे। और ये हमारी हैवी चेन है, ये भी हमारी हैवी चेन है, और ये वाली हमारी लाइट चेन है। मैं इसको डिफरेंट कलर से बना देती हूँ। ये वाला जो है हमारी लाइट चेन है, ग्रीन वाली, एंड here this पिंक हम पिंक ले लेते हैं। ये पिंक वाली जो है ये हमारी हैवी चेन है। ओके, सो आप लोग यहाँ से इसको बना भी सकते हैं अपना, कि ये वाला जो है कांस्टेंट रीजन बोलते हैं हम इसको, और ये वाला जो है बेसिकली यहाँ जहाँ से ये बेंड हो रही है ये वाला रीजन इज़ हिंज रीजन, जो कि हमने देखा था कि रिच इन प्रोटीन होता है, मूवेबल होता है इसकी वजह से। एंड यहाँ पर हम हाइपर वेरिएबल, वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन्स एंड हिंज रीजन्स, यहाँ पे हम डिफरेंट इसके पार्ट्स देख पाएंगे, एंड यहाँ पे हम बॉन्ड्स रेफर करने के लिए कि कौन से प्रेजेंट हैं वो हम देख सकते हैं यहाँ से। सो नाउ इफ़ गिवन द एज यू रेड की प्रोटीएज अगर एक्टिविटी या प्रोटियोलाइटिक ट्रीटमेंट अगर हम देंगे तो 2 फैब रीजन एंड 1 FC रीजन विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस। नाउ the classes of the IgG, talking about the classes of the IgG,
सो ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट पार्ट्स IgG हैज़ 5 क्लासेस. अगर यहाँ पर हम दोबारा देख लेते हैं एक बार, ये वाला हमारा कांस्टेंट पार्ट होता है. इस कांस्टेंट पार्ट की वजह से हमारे पास 5, अगर हमसे क्वेश्चन आए कि किस बेसिस पे जो हमारी IgGs हैं वो डिफरेंट हैं, अलग हैं हमारे पास, तो वो हमारा कांस्टेंट पार्ट है. ऑलराइट, सो टॉकिंग अबाउट द IgGs हियर, फर्स्टली वी हैव IgG. The most abundant IgG, which is approximately 75% present in our body, in our IgG path, exist in monomeric form. Monomeric form में exist करता है, that is it has 2 paratops. Normally one antibody has 2 paratops. तो monomeric form है तो 2 paratop obviously available होगा present होगा. So it is the only antibody which can cross placenta. Now it is the only antibody, you have to remember this. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चीज़ पे कि जो है कौन सा IgG है जो कि IG है जो क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को. सो इट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी इन प्री नेटल लाइफ एंड इट कैन ऑल्सो क्रॉस द प्लेसेंटा. It is involved in the opsonization and is responsible for the fetalis erythroblastosis. So ये एक डिज़ीज़ है बेसिकली जो कि इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एंड ऑल्सो ये ऑप्सोनाइजेशन के अंदर भी इन्वॉल्व है. टॉकिंग अबाउट द IgA, इट्स द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन इफ यू टॉक अबाउट IG एंड इट एग्जिस्ट इन द डाइमर फॉर्म. अगर डाइमर फॉर्म में तो कितने पैराटॉप होंगे, एक एंटीबॉडी में 2 होते हैं तो डाइमर के अंदर 4 होंगे. और ये प्रेजेंट होता है एक्सोसिक्रेशंस में विच इज सिक्रेटेड आउटसाइड अ बॉडी, दैट इज सलाइवा, मिल्क इन मदर्स, मैमरी ग्लैंड्स एट्सेट्रा. एंड IgA इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉपरो एंटीबॉडी. IgA को हम कॉपरो एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं. नॉट टॉकिंग अबाउट IgM. IgM इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन. इट्स लार्ज साइज एंटीबॉडीज़ क्योंकि ये पेंटामर होता है. अब पेंटामर है तो ऑब्वियसली 10 पैराटॉप्स प्रेजेंट होंगे एंड इट एक्ट्स एज रिसेप्टर ऑफ बी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट के रिसेप्टर्स की तरह इट विल एक्ट एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स बी लिम्फोसाइट्स ताकि वो एंटीबॉडीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए. इट इज़ सपोज टू बी इन्वॉल्व इन द ऑप्सोनाइजेशन एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये प्रेजेंट है तो वो डिजीज़ हो जाएगी. मतलब ये होता है कि अगर इसकी डिफिशिएंसी हुई तो वो डिज़ीज़ होने के, जैसे यहाँ पर हमने देखा था हाँ, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था IgG के अंदर हमने देखा था कि फिटालिस इरेथ्रोब्लास्टोसिस. तो ये कब होगा, जब इसकी डेफिशिएंसी होगी. सो इसी तरीके से हमने IgM के अंदर एक डिजीज़ देखी है विच इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ द IgM. टॉकिंग अबाउट द IgD एंड IgE. IgD एक्ट्स एज अ रिसेप्टर ऑफ APC. APC के रिसेप्टर की तरह IgD एक्ट करेगा. T lymphocyte also and B lymphocytes and phagocytic cells also. Basically it will act as receptors of different cells or different immune cells. And talking about the IgE, IgE is to, you must remember कि it's responsible for the allergic reaction, involved in the allergic reactions. It will come first when there is any allergy or allergic reactions in our body and it acts as receptors of the basophil and mast cells. Now talking about the antigen antibody reactions, it is also an important topic. Firstly we'll talk about opsonization. जो हमने कौन सी एंटीबॉडी में पढ़ा था, याद है किसी को? कौन सी एंटीबॉडी में पढ़ा था हमने? ये IgG के अंदर पढ़ा था कि वो IgG जो है ऑप्सोनाइजेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है. तो लाइक दिस यू हैव टू कनेक्ट थिंग्स एंड यू हैव टू रिकॉल थिंग्स. तो ऑप्सोनाइजेशन जो है इसके अंदर क्या होता है कि जो एंटीबॉडी है वो अपने अराउंड एक कोट फॉर्म कर लेती है. एंटीबॉडी मिक्स कोट अराउंड पैथोजन के अराउंड एक कोट फॉर्म कर लेती है और इसके बाद वो जो पैथोजन है वो ईजीली ससेप्टेबल हो जाता है फॉर द फैगोसाइटोसिस. लाइक इट विल बी प्रोन टू फैगोसाइटिस एज वी हैव रेड इन वन ऑफ द मैकेनिज्म्स ऑल्सो, जो कि हमने वहाँ पे पढ़ा था ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के अंदर कि वहाँ पे वो उसका भी एक तरीका हमने ये पढ़ा था कि वो ससेप्टेबल हो जाता है फैगोसाइटिस के लिए.
इसी तरह से, बट यहाँ पे हल्का सा डिफरेंट है केस कि जो एंटीबॉडी है वो हेल्प करती है यहाँ पर फॉर्म करने के लिए पैथोजन के अराउंड एक कोट बन जाता है ताकि फैगोसाइटोसिस का जल्दी हो। ऐसे एंटीबॉडीज़ को हम क्या बोलेंगे, ऑप्सोनेंट्स, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑप्सोनाइजेशन। कमिंग ऑन टू एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन में क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्लम्प फॉर्मेशन एग्लूट हो जाती हैं, क्लम्प की फॉर्मेशन कर लेती हैं एंटीजन के साथ, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शंस पड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्लम्प हो जाती हैं बॉडीज़, जो कि लेटर ऑन फैगोसाइटाइज हो जाती हैं। और इसके अंदर एग्लूटिनिन जो हमारा सब्सटेंस है वो इंक्लूड होता है एंटीबॉडीज़ के साथ। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेसिपिटेशन, ये तो थोड़ा कॉमन है कि इस केस के अंदर क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटीजन को प्रेसिपिटेट कर देती है। कौन? एंटीबॉडी प्रेसिपिटेट्स एंटीजन, एंड हियर द एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एज प्रेसिपिटेंट्स। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इन दिस द antibody neutralizes the toxicity of the toxins, and antibodies is also called as neutralins. Now talking about the antigen, antigen is any foreign particle, डेफिनेशन की अगर हम बात कर लें तो ऑब्वियसली इट्स एन फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में अनकॉल्ड होता है, आ जाता है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ और ये सारा हम पढ़ रहे हैं एंटीजन की वजह से। नॉट टॉकिंग अबाउट द इम्यूनोजन, इम्यूनोजन आर एंटीजन विच कैन इवोक और प्रोवोक आर इम्यून सिस्टम। इम्यूनोजन दैट इम्यूनिटी को हमारी इवोक कर दे तो हमने इसको इम्यूनोजन बोला है। इम्यूनोजन होता तो एंटीजन ही है, लेकिन एक लाइन है कि आपको जो कि याद रखनी है यहाँ पे, ऑल ऑफ द इम्यूनोजन्स आर एंटीजन्स बट नॉट ऑल द एंटीजन्स आर इम्यूनोजन्स। ऑल राइट, हर कोई जो है यहाँ पर एंटीजन जो होता है वो इम्यूनोजन नहीं हो सकता, बट हर कोई जो इम्यूनोजन होता है वो एक एंटीजन भी होता है। सो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हमारे इम्यूनिटी को बहुत सही तरीके से, मतलब क्रॉस रिएक्टिविटी भी हो जाती है कई बार। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यूनोजन विच कैन प्रोवोक अस इम्यून सिस्टम एंड मिनिमम मॉलिक्यूल्स वेट ऑफ एंटीजन टू बिहेव एज इम्यूनोजन। तो इम्यूनोजन जो होता है ना, एक मेजर डिफरेंस ये भी होता है कि इम्यूनोजन जो होता है वो थोड़ा हैवी होता है। एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं वो लाइट भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हैप्टिन, बट देन इम्यूनोजन जो होता है वो थोड़ा हैवी होना चाहिए। मिनिमम इफ वी टॉक अबाउट द वेट दैट शुड बी 750 डाल्टन होना चाहिए, एंड 1 डाल्टन इज इक्वल्स टू 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। टॉकिंग अबाउट द हैप्टिन, हैप्टिन इज एन एंटीजन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। इसको इम्यूनोजन बनाया जा सकता है बट इट इज़ नॉट एन इम्यूनोजन, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। ये इम्यूनोजन नहीं है बट इट कैन बी मेड इम्यूनोजन अगर हम इसको एडजुवेंट के साथ जोड़ दें। मतलब अगर हम इसको कोई कैरियर प्रोवाइड कर देना थोड़ा हैवी, तो ऑब्वियसली इट कैन एक्ट। हैप्टिन के एग्जांपल्स जैसे बहुत तब कॉमन हम पढ़ लेते हैं, पेनिसिलिन पढ़ लेते हैं, ये सब हम लेते हैं, ऑक्सिन, ये सब मेजरली होते हैं। और इसके एग्जांपल्स यहाँ पे एडजुवेंट के हम इसके साथ जॉइन कराते हैं, उसके एग्जांपल्स यहाँ पे फ्रॉन्स, इनकम्प्लीट और कंप्लीट एडजुवेंट्स हो सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द एपिटोप, एपिटोप इज साइड ऑफ द एंटीजन एट विच एंटीबॉडी बाइट्स। अब एक हमने एंटीबॉडी की ऊपर साइड पढ़ी थी जिसको हम पैराटोप बोलते हैं, लेकिन अगर हम एंटीजन के ऊपर वाली साइड से देखें जहाँ एंटीबॉडी आकर बाइंड करते हैं उसे हम एपिटोप बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। सो इट्स एंटीजेनिक डिटरमाइनिंग साइट, ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीजेनिक डिटरमाइनिंग साइट। देयर इज़ अ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी और टेक्निक विच इज़ बेस्ड ऑन द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सो बी लिम्फोसाइट होता है, अगर उसके पास एक एंटीजन आता है तो प्लाज्मा सेल्स जो कि मेनली एंटीबॉडी होता है, मेजरली वर्क करता है, उसकी फॉर्मेशन हमारे पास होगी और वो एक्ट करेगा फिर फर्दर। नाउ माइलॉइड सेल्स भी होते हैं जो कि बोन मैरो के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं और माइलोमा की फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम इनमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज़ PEG, दैट इज़ यहाँ पे लिखा भी है कि हेल्प करता है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो उसके अगर हम देखें तो PEG अगर हम ये डाल दें तो हमारा हाइब्रिडोमा एक सेल बन जाएगा, एक हाइब्रिड सेल बन जाएगा जो कि जिसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी बोलेंगे। सो इम्यून रिस्पॉन्स, इफ यू टॉक अबाउट इम्यून रिस्पॉन्स कैन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, 2 टाइप्स के हो सकते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम कोई भी पैथोजन हमारे पास आया और अटैक किया हमारी बॉडी पे, तो हाउ आर बॉडी रिस्पॉन्डेड टू इट, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। और प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर बी लिम्फोसाइट
मेजरली इन्वॉल्व होता है जो, और ये सारा जो प्राइमरी रिस्पॉन्स का प्रोसेस है वो गवर्न बाय बिलीइंग सोसाइटी होता है। ये थोड़ा कंपैरेटिवली सेकेंडरी रिस्पॉन्स के थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा लेस इंटेंस होता है, क्योंकि सेकेंडरी में हमारे मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होता है कि ये सेकंड टाइम अटैक होने पे, अब सेकंड टाइम कुछ हो तो हम ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड होंगे, फर्स्ट टाइम हम उतना प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी रिस्पॉन्स, इट अकर्स अगेंस्ट द सेकंड टाइम अटैक और सब्सिक्वेंट अटैक ऑफ द सेम काइंड ऑफ एंटीजन एंड इट इज़ गवर्न्ड बाय द मेमोरी सेल्स। कंपैरेटिवली it is fast and more intense. So now talking about the vaccination. Vaccination is also a part of our immunization. वैक्सीनेशन की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन और डिजीज़ विदाउट गेटिंग इल। वैक्सीनेशन वी ऑल नो, कोविड की वैक्सीन सबने लगाई हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्टिकुलर पैथोजन होता है हमें डेड फॉर्म में या बहुत ही लाइट फॉर्म में हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि हमारी बॉडी जो है उसके वो हमारी बॉडी को कोई हम हार्म भी ना करे और हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी पहले ही फॉर्म कर लें, सो दैट इफ़ बाय चांस इट कम्स इनटू आवर बॉडी वी विल बी एबल टू फाइट अगेंस्ट इट। In vaccination, either dead pathogen or attenuated. So attenuated, which has very slow रिस्पॉन्स whatever, लाइक जो भी उसको डिज़ीज़ कॉज करनी है वो बहुत ही स्लो हो जाती है उसकी एक्टिविटी जो है, या कोई सेलुलर कंपोनेंट है, टॉक्सॉइड इनएक्टिव टॉक्सिन है, वो इनॉक्यूलेट कर दिया जाता है इंट्रामस्क्यूलरली या ओरली। या तो ओरली हमें मिल जाता है जैसे कि पोलियो की वैक्सीन वी हैव सीन, या इंट्रामस्क्यूलर मसल्स के अंदर जैसे हमने कोरोना की ली थी। तो द पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन इज़ टू डेवलप मेमोरी सेल्स, एज आई सेड, ताकि हमें पहली बार एंटीजन आए, हमें एकदम से हम बीमार ना हो जाए, हमें पता, हमारी बॉडी को पता नहीं है कैसे रिएक्ट करना है। सो दैट इज़ वाई हम वैक्सीनेशन पहले ही ले लेते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी को ज़्यादा कुछ हार्म भी ना कर सकें। जैसे कि हमने कोरोना की वैक्सीन में देखा कि हमें 1-2 दिन फीवर आया था, वो किसी लिए आया था कि वो हमारी जो है माइक्रोब्स जो ग्रो कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको उसको किल भी कर दें, और उसके बाद एंटीबॉडी का फॉर्मेशन भी हो जाए, मेमोरी सेल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर बन जाए, एंड इट्स वे टू फास्टर देन द प्राइमरी रिस्पॉन्स एज वी हैव रेड जस्ट नाउ। So now if the pathogen enters in the life form, the body will give a secondary response automatically to it. So the father of vaccination is Edward Jenner. He developed a vaccine against the smallpox or cowpox. He did an experiment on son James Philip. खुद के ही बेटे पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, and the scientific explanation of vaccination was given by Louis Pasteur. He gave it, he experimented and he gave, but then he couldn't explain it. The explanation was given by Louis Pasteur, and Louis Pasteur developed the vaccine against the cholera and rabies, etc. But initially, I must tell you that Louis Pasteur worked upon the tuberculosis, and from here हम next lecture में इसको continue करेंगे. It was all till here. So if you like my video, you know the drill. Please like, share and subscribe my video. Thanks.